काले काले गूंगे। Hello, it is am audible? Yes, sir. Yeah, thank you. Okay. In previous lecture, already we have started with the UT system. Already we have seen the theoretical part of the UT system. Now we'll start the numerical. Okay. So this is the numerical. We need to design the EOT system. For the application is a class 2. Application is given. Application and preliminary class 2. Yeah. We need to go with the application class 2. Lift load to be lifted. Our system must be able to lift the at least 80 kilonewton, that is a 8 ton. Costing speed
velocity is given, hoisting velocity is given 6 meter per minute, and maximum lift is given there 10 meter. Okay, so only if you're going to see there's four data is given, and with help of this four data, we need to design the full EOT system. Full EOT system is what we have a different part in this one. First part is related to the uh, hook block related, and that hook block is containing the number of the component. Next part is related to the pulley design, and last part is nothing but the hosting drum part. Okay, so these three categories there. First category is belong to the hook block. Second category is belong to the pulley assembly. Third is belong to the rope drum assembly. Okay, so rope drum assembly is nothing but the hosting rope drum assembly. So we need to go with this one by one. Okay, so before that I need to write the data. And if you're going to see here, they have asked to design the four. First one is related to nothing but the wire rope. Next one, they have asked for their design their pulley related to that. So you can say the second part. Third part is nothing but their related to their to your hook, and last part is related to the hook. So you need to go with the one by one. Now, if you're going to see the how many components we have in a EOT system, so before that, just let me write the given data. In given data, we'll get the most of data from the PLC according to the given data that we have application class 2. We'll get the most of data from the application is given, is mentioned here, class 2. In the theoretical part, we have seen the ABC class, and we'll see what is the difference between ABC and class 2. If you're going to see the load is there, 8 ton, 8 ton load is there. Velocity is nothing but the 6 meter per minute. 6 meter per minute, and maximum lift is nothing but the 10 meter. Rope life is given 12 meter. This data is given. यहाँ पे हमको दिया था rope limited. So if you're going to see here 12 मिनट के लिए दे, तो total we have a 5 data. So here if you're going to see this 5 data is given, and उसके लिए मुझे total 10 component design करना है. If you're going to see the part wise thing, so first part is nothing but the your part 1 is absolutely right. Part 1 is nothing but the belong to the rope design. तो हम लोग very critical part is nothing but the rope. We need to do the rope. If you are going to see the part 2, so we are going to design the pulley. जो भी pulley related रहेगा, pulley design we will do. Okay. Rope के बाद we will go with the pulley design, and pulley design is going to be contain the first तो जो तुम्हारा pulley है वो contain रहेगा. Next one is shaft, and next one is the bearing. This 3 part we are going to design in a part. Okay. So part 3 जो हम डिजाइन करने वाले हैं, that is nothing but hook assembly. Hook assembly, and hook assembly is going to be contain the first hook design करना है मुझे यहाँ पे. फिर हमको we are going to design the nut for the hook. After that we are going to design the thrust bearing, and the same things we are going to design the cross piece. So basically in a part 3 we are going to design this 4 component. In the part 4 we are going to design the hosting drum mechanism. तो hosting drum रहेगा वो mechanism we are going to design. So in this one we are going to design this nothing but the rope drum. Rope drum मतलब this rope drum is your hosting drum. जो ऊपर drum रहेगा we need to design hosting drum. After this we need to design the drum shaft.
After this, we need to design a shaft bearing, and after this, shaft bearing, yes, more than enough. Now, after this, we will go with the part 5. In a part 5, we need to design the motor, and the same part we are going to design the transmission system, because RPM of the motor and speed of the drum is different. So we need to make the proper transmission system. Then we can decrease the speed of the motor. ये चीजें हमको इतना डिजाइन करना है. So if you're going to count, then you can see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So if you're talking about the component wise, so we have a total this much component. Now, so we'll start with the part 1. Part 1 से start करते हैं. ये जो चीजें पूछा है यहाँ पे, we have listed by this way. So in your exam, they may be asked first part and second part. They may be asked first part and third part. They may be asked second part and third part. They may be asked first part, last part, and fourth part. So they will, when they are going to be asked the question, so that question is going to be in a part wise. ऐसा नहीं होने वाला कि इसका पुल्ली पूछेगा, इसका न पूछेगा, ऐसा नहीं. So we have a one system design. तो एक जब सिस्टम डिजाइन करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, we are going to do that. So पुल्ली डिजाइन चालू किया तो we are going to complete with the pulley design with the shaft and bearing. Similarly with the hook and other components. Now, so before the starting, we'll make this some assumptions. जिसको हमने वहाँ पे गियर के डिजाइन में किया था, इट इज नथिंग बट द जनरल assumptions. Why we are making this general assumption? क्योंकि हमको बहुत सारी डिटेल दिया हुआ नहीं है. So we need to go with the basic assumptions. Basic assumptions के साथ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे. So first one, मेरा जो सिस्टम बनने वाला है, टेकल सिस्टम बनने वाला है, वो सिस्टम कौन सा कंसीडर करके तुम डिजाइन करने वाले हो. ओके, टेकल सिस्टम इज बेसिकली इज अ टू टाइप. फर्स्ट वन इज द गेन इन फोर्स. ओके, सेकेंड इज नथिंग बट द गेन इन स्पीड. We have a two type. So you can design the system by the gain in force or gain in a speed. So gain in force means you will get develop the force, जो lifting force है, will lift the slowly is going to be increased. Effort to lift the everything. And here gain speed means speed is going to be increased from slowly to speed, rapidly they will increase. So you can design the system for the speed के लिए भी, और if you are going to design the system for the heavy component, so always will prefer the gain in force. Okay, because our system must be able to gain in force system. Speed light weight है और तुम्हें ज़्यादा लिफ्ट करना है, so you can go with the gain in speed. So our selection यहाँ पे हमारा रहेगा, that is nothing but the gain in force. We can proceed with the gain in force system. Right? ज़्यादा heavy lift करना है, then we'll proceed with the gain in force. If I want to lift in a maximum height and ज़्यादा height lift करना है and weight of the goods is less, then we can go with the now. अभी इसमें most of time when a system design the gain in force, so gain in force design करते हैं तो जो तुम्हारा effort लगता है to lift करने के लिए वो balance रहता है. मतलब indirectly you can say कि less effort में भी you can lift the maximum force. So maximum less effort में you can lift the goods. Okay, मोटर जो पावर है वो मोटर पावर भी हमको लेस रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग डायमीटर एवरीथिंग वी हैव कंसीडरिंग. सो व्हेन वी आर डिजाइनिंग ए गेन इन फोर्स, सो सिस्टम को कम एफर्ट में अच्छे से उठा सकता है, मैक्सिमम वजन. मोटर में तुम्हारा लोड भी कम आता है. ओके, सो बाय कंसीडरिंग दिस पैरामीटर वी कैन प्रोसीड विद द गेन इन सिस्टम. ओके, so gain in system से we are going to proceed with because we are getting the maximum advantage in a gain in force. Now second one, this first assumption. Second assumption मेरा है पुल्ली. पुल्ली डिजाइन के टाइम पे मुझे सर यस बेटा सर आपने बोला ना गेन इन फोर्स जब ज्यादा लोड को लिफ्ट करना रहेगा तभी यूज करना है, तो ज्यादा मतलब कितना? सी अभी वेट ज्यादा लिफ्ट कर, अभी तुमको बोला 2 टन करना है तो 2 टन इज नॉट अ बिग. सेकेंड थिंग मैक्सिमम लिफ्ट करना है एंड
what height you need to lift, दोनों मैटर करने वाले हैं. सेकेंड थिंग, when you prefer the gain in speed, तो सर क्या 10 टन में नहीं कर सकता क्या लिफ्ट? यस, यू कैन लिफ्ट द 10 टन आल्सो बाय डिजाइनिंग द गेन इन स्पीड. लेकिन जैसे ही मैं गेन इन स्पीड यूज करूंगा, सो माय मोटर पावर वी नीड मोर. इन अ गेन इन स्पीड मोटर पावर इज लेस. अब होता क्या है कि वी डोंट हैव एनी डेडलाइन कि 10 टन है, 15 टन तक आई एम गोइंग टू यूज द गेन इन फोर्स. दैट इज अ मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स. यदि तुम्हारे पास मोटर का एफिशिएंसी कम है, लेस पावर का मोटर है, and you are trying to lift the maximum, so you can go with the gain in force, because कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं बोलता 10 to 15 मीटर इज अ मैक्सिमम हाइट टू लिफ्ट. यदि उसको छोड़ के यदि तुम्हारे पास मोटर पावरफुल है और यू कैन मूव विद द मैक्सिमम स्पीड, क्योंकि मोटर पावरफुल है तो कोई भी कंपोनेंट तुम फटाक से लिफ्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे यदि मैं गेन इन फोर्स कर रहा हूँ तो इट डजंट मीन कि 8 टन रहेगा, 10 टन रहेगा, 15 रहेगा, देन ओनली आई कैन गो फॉर द गेन इन. When I'm choosing the gain and force for this 8 ton, 10 ton, 15 ton, so that type जो मेरा मोटर है ना, वो मोटर मेरा बहुत स्लोली लेस एफर्ट के साथ मोटर है, स्लोली से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास ताकत कम है तो आई विल स्लोली लिफ्ट दीजिए, तो स्पीड मेरा कम होने वाला है. मोटर ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा कॉस्टली मोटर है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, सो यू कैन गो विद द गेन इन स्पीड. तो सर मोटर तो हम डिजाइन करने वाले हैं. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मोटर डिजाइन, सो इफ आई एम गोइंग टू डिजाइन द गेन इन स्पीड बाय से, तो 10 मीटर तो जाएगा और 8 टन भी लिफ्ट कर सकता है, बट मेरा मोटर का स्पेसिफिकेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज, और वो स्पेसिफिकेशन इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ मोटर इज गोइंग टू इंक्रीज. सो जब भी हम लोग ट्राई करते हैं तो वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दिस थिंग्स. सो ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विल सिलेक्ट दिया छोटा वाला मोटर से मेरा ज्यादा काम हो सके, भले मुझे कौन सा बहुत जल्दी 0 to 10 मीटर रीच करना है. सो स्पीड इज विल बी लेस इन अ गेन इन फोर्स. तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा डेडलाइन डिफाइन नहीं कर रहे कि 10 टन तक रहेगा तो गेन इन फोर्स रहेगा. सो व्हेन वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द गेन इन फोर्स और गेन इन अ स्पीड, सो वो टाइम पे हम लोग को मल्टीपल पैरामीटर्स चेक करना है कि लोड कम है तो मेरा मोटर है, तो लोड कम है तो मेरा मोटर ज़्यादा स्पीड से जा सकता है, तो आई कैन गो विद द गेन इन स्पीड. लेकिन यदि मेरा 8 टन है तो वो 8 टन के अगेंस्ट मेरा मोटर एफिशिएंसी मुझे कम वाला यूज करना है, तो वो कम वाला एफिशिएंसी यूज करना है तो मुझे गेन इन फोर्स के लिए जाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे देयर इज नो ऐसा दैट फॉर्मूला कि गेन इन फोर्स के लिए जाना है या गेन इन स्पीड के लिए जाना है. ओके, सम टाइम जब हम लोग गेन इन फोर्स यूज करते हैं तो लेंथ ऑफ रोप पे भी फर्क पड़ता है, लेंथ ऑफ रोप पे भी फर्क पड़ता है, ड्रम साइज, पुल्ली साइज, इस पे भी इफेक्ट आता है. तो जो तुम्हारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है ना, दैट कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इज मैक्सिमम पॉसिबल इन अ गेन इन फोर्स. यहाँ पे छोटे मोटर से यू विल ट्राई टू लिफ्ट द हैवी वाला, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं. कभी हम लोग बोलते हैं ना यार ताकत कम है इसलिए स्लोली लेके जा रहा है इंजन. यदि हाई पावर वाला, हाई टॉर्क वाला इंजन लगाएंगे तो इट इज गोइंग टू बी मूव रैपिडली. तो बोलते हैं ना 0 से 1 5 सेकंड में 100 रीच करता है. तो वो वाला कंसेप्ट कभी एप्लीकेबल है व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द हैवी वाला मोटर. तो यहाँ पे मैं गेन इन स्पीड के लिए जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इतना कॉस्ट डालना नहीं है. आई डोंट हैव दैट मच रिक्वायरमेंट ऑफ द स्पीड, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर द गेन इन फोर्स, और ये मेरा अच्छा खासा लोड लिफ्ट कर सकता है. ओके, तो ऐसा कैटेगराइज करो. ऐसा नहीं कि 10 टन है तो इससे जाना है और 5 10 है तो ऐसा जाना है. ये वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. मेरा रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द गेन इन फोर्स एंड गेन इन स्पीड. सो वेट ज्यादा रहता है तो फोर्स के लिए जाने का, क्योंकि वो क्या आएगा, छोटे मोटर से ज्यादा काम हो सकता है. ओके, यस सर. तो इसको ऐसा कैटेगराइज नहीं करना है अपने को कि ज्यादा सर ने बोला तो मतलब 10 टन है तो गेन इन फोर्स. गेन इन फोर्स ज्यादा लोड के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके अगेंस्ट हमको कम मोटर की एफिशिएंसी लगता है. मोटर छोटा वाला भी रहेगा तो वी कैन प्रोसीड विद दैट. एफर्ट कम लगता है उठाने का, क्योंकि धीरे धीरे उठा रहा है, ज्यादा झटके में उठाना है तो यू नीड टू मोर फोर्स. ओके, तो वो वाले वे से हमको यहाँ पे कैटेगराइज करना है. नाउ पुली सिस्टम, तो यहाँ पे वी हैव अ टू थिंग कि आई कैन यूज दिस सिंगल पुली, सिंगल यूज कर सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन यूज इन मल्टीपल. यस, अभी मेरे को मल्टीपल यूज करने में बेनिफिट है या सिंगल यूज करना. सो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड कि भैया जितना नंबर ऑफ फॉल्स बढ़ेगा उतना ही रोप पे मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन विल इंक्रीज. ओके, सो इफ आई एम यूजिंग द सिंगल पुल्ली, तो सिंगल पुल्ली यूज करूंगा तो लोड इज गोइंग टू डिवाइड ओनली ऑन द 2 रोप्स. यदि मैं मल्टीपल पुल्ली यूज करूंगा तो दैट number of fall will increase, and when number of fall will increase so load is going to be distributed. ये पैरामीटर देख के
we can select here what which one multiple. हम लोग यहाँ पे क्या सिलेक्ट करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द मल्टीपल. रीजन क्या है, मल्टीपल पुल्ली लिया तो बिकॉज ऑफ दिस मल्टीपल पुल्ली विल गेट द मल्टीपल फॉल्स, मेरा फॉल ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो वो फॉल के लिए हम लोग यहाँ पे वी कैन प्रोसीड. ठीक है, ये चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन किया. सिस्टम हमको यहाँ पे पुल्ली डिजाइन करने के लिए बोला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि सिंगल पुल्ली लो या मल्टीपल पुल्ली लो. बट एज अ जनरल assumption कि अब जो सिस्टम डिजाइन करने वाले वी आर assuming the multiple. Why we are using the multiple? यदि मेरा यहाँ पे एक पुल्ली है तो दो ही रो पैसा है. बट इफ यू हैव टू पुल्लीज जिसके ऊपर पूरा का पूरा सिस्टम, सॉरी यहाँ पे ये मेरा टू पुल्लीज है, तो ये टू पुल्लीज है मतलब विल गो टू फोर फॉल. तो फोर फॉल पे मेरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये मेरा ज्यादा एफिशिएंट है. ज्यादा रोप के ऊपर ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, रोप के ऊपर मतलब कम लोड आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन विल बी मोर एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट होएगा. तो मेरा यहाँ पे ये होगा, नीचे मेरा हुक ये प्लेट लगा रहेगा और यहाँ पे हुक लगा, तो ये जो भी लोड यहाँ पे पी आने वाला है वो 4 में डिवाइड होगा. यदि मैं सिंगल यूज करूंगा तो वो p/2 लगेगा, यहाँ पे p/4 p/4 होने वाला है. सो यहाँ पे रोप डिजाइन करने के टाइम पे इट विल बी वेरी इफेक्टफुल इफ आई एम चूजिंग ए मल्टीपल. ओके, यहाँ पे आई विल चूज ए मल्टीपल. यहाँ पे हम लोग मल्टीपल पुल्ली वी आर गोइंग टू सिलेक्ट. Next assumption, third one, fall system. So basically कौन कौन सा fall system होता है हम लोग जो यहाँ पे देखते हैं. First we have a 4 fall system. Already we have seen in calculation. 4 बार तुम्हारा रो fall हुआ है. It may be a 8 fall system or it may be a 12 fall system. ठीक है, now if we are talking about the 8 fall system, 4 fall और 12 fall, तो which one is our suitable for our system, अपने लिए कौन सा suitable है. तो यहाँ पे we need to follow the standard one. यदि मेरा जो लोड है if it is less than 25 ton, so I can proceed with the 4 fall system. If my load is greater than 25 but less than 75 ton, so I can proceed with the 8 fall system. Similarly, if it is greater than 75 but it is less than या less than की भाई ऐसा तुम भी बोल सकते हो कि यदि मेरा लोड 75 से कितना भी रहने वाला है ज्यादा, ओके, सो आई एम गोइंग टू ऑलवेज यूज दियर 12 fall because we have a 3 fall system only, 4 fall, 8 fall. So by using this concept you can at least define the fall system. अब बोलोगे सर यदि मेरा 75 वाला 8 fall system यूज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये तो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा मेरा. When you are increasing the more fall system, वो more fall system से क्या होगा, सिस्टम ही बल्कि होने वाला है. When you are using the 4 fall system तो कितना पुल्ली रिक्वायर्ड है, when you are using the 4 fall system तो कितना पुल्ली रिक्वायर्ड है, when you are using the 12 fall system तो कितना पुल्ली रिक्वायर्ड है. When your pulleys will increase, then your length of the rope is also increase. उतने बार वो घूमेगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, so length भी increase होएगा. So system is going to be more bulky for the minimum load. तो वैसा नहीं होना चाहिए. तो हम लोग क्या ट्राई करें कि एटलीस्ट ऐसा ना हो कि अंडर लोड के लिए डिजाइन करें. तो हमने उसके लिए क्या किया कि हमने वी हैव स्टार्ट फाइंडिंग की यदि मैं 4 फॉल सिस्टम ले रहा तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मूविंग पुल्लीज. यदि मैंने 4 फॉल सिस्टम लिया तो नंबर ऑफ पुल्लीज कितना होता है. यस एनीवन, यस एनीवन. लास्ट टाइम हमने देखा था कि यदि 4 फॉल सिस्टम है तो उसके लिए हम लोग नंबर ऑफ पुल्लीज कैसे निकालते हैं. मैंने लिखा रहेगा तो डेफिनेटली विल या नंबर ऑफ द मूविंग पुल्लीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉल्स डिवाइड बाय 2. तो यहाँ पे इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मूविंग पुल्लीज, यदि मुझे नंबर ऑफ मूविंग पुल्लीज कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी मस्ट हैव, वी हैव अ नंबर ऑफ फॉल्स. सो इफ वी नो द नंबर ऑफ फॉल्स देन वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मूविंग पुल्लीज. तो यहाँ पे मैं निकाला, यदि 2 फॉल लेते थे सिर्फ, हमने बोले 2 ही फॉल लेने का, जो अभी यहाँ पे लिया नहीं हमने बिकॉज वी आर नॉट डिजाइनिंग ये 2 फॉल सिस्टम, क्योंकि बहुत सिंपल यूज के लिए रहता है. ठीक है, तो 2 फॉल के लिए नंबर ऑफ मूविंग पुल्लीज गोइंग टू बी जस्ट हाफ. If you are selecting it तो 4 moving pulleys लगने वाला. तो in this case मुझे एक चीज तो पता चल गया, if I am selecting the 8 fall
तो मेरा जो मूविंग पुलिस रहने वाला है वो मेरा रहने वाला है, मूविंग पुलिस रहेगा, वो कितना रहेगा तुम्हारा, दिस इज डिपेंड ऑन द 4 सिस्टम। इफ आई एम सिलेक्टिंग द 4 8 फॉल सिलेक्ट किया तो ये 4 हो जाएगा, ये 12 सिलेक्ट किया तो ये 6 पुल्ली हो जाएगा, तो 6 पुल्ली ऐसा लगेगा, ये तुम्हारा 5 1 6 ऐसा, ये पूरा इसके लिए एक शाफ्ट लगेगा और ये पूरा यहाँ पे तुम्हारा ये होएगा, फिर बाद में यहाँ पे क्रॉस पीस आएगा, क्रॉस पीस के बाद तुम्हारा हुक आएगा, यहाँ पे नट आएगा, कैप आएगा, यहाँ पे थ्रस्ट बेरिंग आएगा, ये इतना बल्कि डिजाइन हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू डिजाइन 6 पुल्लीज, तो इतना बड़ा बल्कि सिस्टम 8 टन के लिए इज नॉट फिजिबल, तो आई कांट सिलेक्ट 4 और sorry 8 or 12, so we'll select the only 4. After that you can define the number of band also, कि number of band कितने पे हमको कर लेना है, we can go with this that. तो हमने बोला यदि हम लोग मोस्टली जो सिस्टम डिजाइन करते हैं नंबर ऑफ बैंड्स निकालेंगे, जो हम लोग वो लोग नंबर ऑफ बैंड्स 3 और 4 के अप्रोच पे ही हम लोग डिजाइन करने वाले हैं ईओटी सिस्टम। सो यू कैन कंसीडर द 3 बैंड सिस्टम और 4 बैंड सिस्टम। इसके पीछे रीजन क्या है, लाइफ ऑफ बैंड, लाइफ ऑफ रोप जो होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैंड्स। ये रीजन क्या है मिनिमम रखने का, तो हमको एक चीज याद रहना चाहिए कि भैया यदि मैंने गलती से यदि रिलेशन देखा लाइफ ऑफ रोप एंड नंबर ऑफ बैंड्स का, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कि जितना मेरा नंबर ऑफ बैंड्स इंक्रीज होएगा उतना लाइफ मेरा डिक्रीज होएगा। ओके, या मैं इसको डिक्रीज करूंगा नंबर ऑफ बैंड्स को, तो लाइफ इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो टू गेट द हायर लाइफ वी कैन प्रोसीड विद दी कि भैया चलो हम लोग 3 बैंड से देखेंगे, पहले नहीं फिजिबल लगा देन आई विल शिफ्ट टू द 4 बैंड्स। सो हियर ऑलरेडी वी नीड टू डिजाइन द रोप फॉर द 12 मंथ, तो हमने 12 मंथ के लिए करना है, इसलिए मैं 3 बैंड से गया, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरा जो बेसिक फंडा है मैं यहाँ पे 3 बैंड्स यूज करूंगा, 4 बैंड यूज करूंगा, तो भी मुझे 12 मंथ मिलने वाला है। 1 साल के लिए रोप तो मेरा फिजिबल रहने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम मंथ के लिए डिजाइन करने के लिए बोला है। और दूसरा यदि रिलेशन देखने जाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि नहीं, यदि मुझे एक्चुअल में फिजिकली यदि मैं खुद से एक्सपीरियंस करने जाऊँ तो ये बात तो सही है कि भैया जितना बैंड ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा वो वीक होएगा और उस पर स्ट्रेसेस ज्यादा जनरेट होंगे और फेल ज्यादा होएगा, तो मुझे यहाँ पे मेंटेन रखना है, तो मुझे यहाँ पे कम रहे। ओके, so we need to proceed. Yes, anyone is having any doubt, then they can ask. This is our total 4 general assumptions there. Okay, कुछ है तो पूछो। Yes, so I am going to start with the first part. Part 1 क्या था मेरा, rope design. So we'll start with the rope design. तो मैं पहला जो मेरा critical part है that is going to be a rope design. rope design. अब इसमें भैया कौन सा रोप, कोई भी कंपोनेंट डिजाइन करने के लिए रोप का स्ट्रेंथ निकालना है मुझे, मटेरियल ऑफ दिस रोप, वी नीड टू सिलेक्ट द मटेरियल ऑफ द रोप। सो पहला तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि किस मटेरियल्स का यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द रोप। ओके, सो कौन सा मटेरियल का रोप बना सकते हैं, यस एनीवन, कौन सा मटेरियल लेना चाहिए मुझे बनाने के लिए, यस प्लीज, क्या लगता है कौन सा मटेरियल का रोप बनाओगे तो इट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट। मटेरियल का डिजिग्नेशन मत बोलो, बट एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू से टेल कि व्हाट इज अ टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल यूज करें। यस एनीवन, देखो भैया इस पे 10 टन रहने वाला, मतलब मेरा मटेरियल हमेशा वर्किंग क्या रहने वाला मटेरियल का, इन द टेंसाइल फॉर्म। फेलियर चांसेस क्या होने वाला है, ड्यू टू द टेंसाइल। जब भी मेरा रोप नीचे रहेगा इसके ऊपर कंप्रेसिव का तो कुछ इफेक्ट ही नहीं आने वाला, इस पे हमेशा जो इफेक्ट आने वाला है वो टेंसाइल का इफेक्ट आना है। सो जो मैक्सिमम फेलियर ऑफ द रोप है दैट इज बिकॉज ऑफ टेंसाइल, वो हमेशा टेंसाइल की वजह से ही फेल होने वाला है। सो मुझे ऐसा मटेरियल लेना है जो मेरा मटेरियल मस्ट हैव द हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ। So higher tensile strength still I can select here because we know that our rope is going to be fail due to the only tensile. Tensile की वजह से ही fail होगा. So I will try to select the high tensile. अब कौन सा इसमें स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करना है नहीं करना है
वो हम देखेंगे, बट ऑलरेडी आई हैव डिफाइन कि भैया हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टिल वी आर गोइंग टू सिलेक्ट, बिना उसके मेरे काम नहीं होने वाला, सो वी नीड टू गो विद दिस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल. Yes, anyone is having any doubt, then they can ask. And you can get this some data related to EOT in a chapter 9. EOT system chapter 9 PSG में मिलेगा. We'll see that part also. But before that you just see कि वहाँ पे मटेरियल का क्या दिया है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का कुछ ग्रेड दिया है क्या, we'll see there. नहीं दिया है तो we'll go to the chapter 1 and we'll try to select the material. Second important part is what? Rope construction. rope जो ले पढ़ा था हमने, राइट ले, लेफ्ट ले, लॉन्ग पैरेलल, लॉन्ग शॉर्ट, जो तुमने पढ़ा था उससे रिलेटेड कौन सा ले सुटेबल है, वी नीड टू सिलेक्ट. अब इसमें जो ले है ना, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, राइट लेफ्ट. दूसरा और कौन सा टाइप था, यस एनीवन? रेगुलर और लॉन्ग वाला. यस, रेगुलर एंड लॉन्ग वाला. ओके, सो इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द रेगुलर वाला और लॉन्ग वाला. रेगुलर में क्या रहता है, योर wires is what always parallel to the axis of the rope. दूसरा में क्या रहता है, लॉन्ग वाले में इट इज ऑलवेज along the stand, जो भी स्टैंड रहेगा उसके along में रहता है. तो यहाँ पे हम लोग उसको इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं कि जो मेरा ले रहेगा वो मेरा पैरेलल रहेगा या क्रॉस रहेगा, पैरेलल रहेगा या मेरा क्रॉस रहेगा. तो इसको तुम बोल सकते हैं रेगुलर रहेगा या मेरा लॉन्ग वाला रहेगा. सो इन दिस वन आई विल कौन सा मेरे लिए सिलेक्ट है. तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है और इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, मुझे दोनों के दोनों पता होना चाहिए. इफ यू नो दिए कि पैरेलल मतलब जो तुम्हारा रेगुलर है उसका क्या है, या क्रॉस वाला जो है जो एग्लॉन्ग दिए स्टैंड जाता है उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे पता है, तो आई कैन प्रोसीड दिस. ठीक है, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि पैरेलल वाले में क्या रहता है कि भैया ये जो पैरेलल रहता है ये फ्लेक्सिबल रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मोर, फ्लेक्सिबल रहता है. दूसरा क्या रहता है, इसका जो वेयरिंग है ना दैट लेस वेयर होता है. थर्ड वाला इसका जो पैरेलल वाले का है, इसका स्ट्रेंथ भी क्या होता है, कम होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टेंडेंसी ऑफ द रोप, जो टेंडेंसी ऑफ रोप है ना वो स्पिन होने के बहुत है. अभी क्या होता है, जब भी हम लोग कभी कभी देखते हैं तो छोड़ते तो अपने आप ऐसा घूमने लगता है, स्पिन होने लगता है. सो वो टेंडेंसी है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर. तो ये इसमें से जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इन पैरेलल कि भैया स्ट्रेंथ तो हम बाद में देखेंगे, जो टेंडेंसी और स्पिन है ना दैट इज अ वेरी मोर टेंडेंसी ऑफ दिस. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाज देयर मोर, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेस है इन ए क्रॉस. जस्ट राइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस, वेयर यहाँ पे वेयर लेस है लेकिन यहाँ पे वेयर ज्यादा होता है क्रॉस में. ठीक है ना. स्ट्रेंथ वाइज बात करेंगे तो ये स्ट्रेंथ लेस देता है, ये स्ट्रेंथ मोर. इफ गोइंग टू टॉक अबाउट द मोर टेंडेंसी टू स्पिन, तो इसका टेंडेंसी ज्यादा है स्पिन होने का और इसका टेंडेंसी कम है स्पिन. सो अकॉर्डिंग टू दिस टू कंपैरिजन कौन सा मेरे को सिलेक्ट करना फिजिबल होगा, यस प्लीज सजेस्ट. If I'm going to just categorize को रेगुलर राइट लेफ्ट, रेगुलर लॉन्ग को छोड़ के इफ I'm categorize की पैरेलल है, विल सी द कंस्ट्रक्शन पैरेलल और इसका क्रॉस प्लाई का वापस से. लेकिन यदि हम लोग इसको सिंपली दो में डिवाइड करते हैं क्योंकि हम लोग पैरेलल क्रॉस किए जा रहे हैं बिकॉज वी आर यूजिंग ये PSG. सो इफ यू आर गोइंग टू सी द PSG वाला टर्म, सो पैरेलल एंड क्रॉस के थ्रू वी नीड टू गो. इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस टू, तो इसमें से दोनों का कंपैरिजन भी है. सो व्हिच वन इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. यदि तुम ऐसा कंपेयर करने जाओगे तो यहाँ पे दो एरो डाउन है और दो एरो अप है, यहाँ पे भी दो एरो डाउन है, दो एरो अप है. सो व्हिच वन वी नीड टू सिलेक्ट. यस एनीवन, सिलेक्शन क्या रहेगा मेरा. यस मैंने ऑलरेडी बोला डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एप्लीकेशन कैसा है. एप्लीकेशन के साथ साथ बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है
कि यदि तुम कोई भी चीज को, रोप को, पाइप को, यदि तुम वाउंड करने की कोशिश कर रहे हो, वो स्पिन हो रहा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू वाउंड इट। और यहाँ पे जो फंक्शनिंग है यूटी का, दैट यूटी फंक्शनिंग इज व्हाट मैक्सिमम तुम्हारा क्या है, वाउंड का फंक्शन। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है जो मेरे लिए। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए स्ट्रेंथ। ये दो मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि भैया ये एरो डाउन है लेकिन ये पॉजिटिव है। जो यहाँ पे सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है वो ये ड्रॉप है, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, मतलब अनवांटेड जगह पे मुड़ेगा नहीं, क्योंकि यदि इतना फ्लेक्सिबल होता तो स्पिन हो जाता था, तो फ्लेक्सिबल नहीं है इसलिए स्पिन नहीं होता। तो ये भी मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा तो कहीं पे भी बैंड होते रहेगा, तो ये भी मेरे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। वेयर ये एक्चुअल में बिग लॉस, यहाँ पे वेयर ज्यादा होता है, दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस क्रॉस प्लाई। अदरवाइज दिस 3 points are is very feasible for the EOT system. So we can go with the cross ply. Cross ply के साथ I can go with the cross lay. Cross ply cross lay. Cross lay के साथ we can go with this. Okay. Now we'll go with the PSG and we'll see the कि कौन सा चीजें कहाँ पर लेवल है। ऊपर ये PSG मीटिंग के लिए मैसेज आया है क्या तुमको किस बेटा? क्या सर आवाज कट रहा था। कोई मीटिंग के लिए आउटी सर ने कुछ बोला था कि 11 बजे तुम्हारा मीटिंग है? हाँ सर, मतलब एक वेबिनार के लिए लिंक पे जाता है, तो उसका कुछ मैसेज आएगा तो जस्ट लेट मी नो, देन आई विल स्टॉप। ओके, मुझे अभी तक आया नहीं, मुझे सर का मैसेज आया था, बोला था सर ने मुझे, तो आई डोंट नो कभी चालू होने वाला है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इफ यू आर गेटिंग एनी इन्फॉर्मेशन देन जस्ट इन्फॉर्म मी, आई विल स्टॉप, देन यू कैन ज्वाइन। सर मतलब ऑडी करने वाला था 11 o'clock को ज्वाइन करना है जैसे। अच्छा, जस्ट मिनट है, मैं उसे कंफर्म करता हूँ, देन आई विल स्टॉप।